Okay, hello, good evening, everyone. So, the very awaited session, which everybody was being very eager. मैम आंसर राइटिंग कब करेंगे, आंसर राइटिंग कब करेंगे, आंसर राइटिंग कब करेंगे, दो चैप्टर्स खत्म हो गए. So here we have a session of questions and answer writing. Okay, I would please want everybody to get their pen and paper. Okay, maybe I will not make you write answers, okay? But I'll tell you the pointers. I'll tell you how to attempt a question with what binds it so you make the least mistake. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Start. Let's start. So this is for your doubt resolution. Any doubt after this session अगर आपको आता है, so you guys can scan this QR and or Gmail us at this email, sorry, email us at this Gmail and WhatsApp us on our toll free number. Okay? Hi, hello. Okay, enough. Please, please, please. I'm just giving you 2 minutes till then I'm figuring out. Yes, 2 minutes to get your pen and paper very quick, real quick. We are even providing you the answer script. You can download the answer script also. Okay? After writing, scan your answer sheet clearly and email us for reevaluation. Okay, evaluation. Go quickly. And I have one announcement to make. Okay. सब आगे वापस. There is this little announcement I would want to make. फिर शुरू करते हैं. ठीक है? So the announcement is that after the 10th class, or you may say 10th session, please focus now. After this 10th session, we will have uh, we will have a weekly test. Okay? And one more thing, the answer sheets will be available after the class in the description. Okay? आप उसको निकलवाइए, डाउनलोड करिए, प्रिंट करवाइए, उस पर अपना आंसर लिखिए, स्कैन करिए, फिर हमें हमारे ईमेल्स या जीमेल्स पे भेज दीजिए ताकि आपकी आंसर कॉपी चेक हो सके. ठीक है? शुरू करें. Everybody, please tighten your seatbelt. Let's start the roller coaster of questions. चलिए. Let's see what is the first. Oh, let me raise it first. Wow, I learned something new. First question आपके स्क्रीन पे ये रहा. Now understand how to attempt a question paper first. Okay? जब आप एक क्वेश्चन पेपर या जब आप एक एटमोसफेयर में बैठते हैं ना, एक एग्जाम एटमोसफेयर में बैठते हैं, आपका दिमाग जो होता है वो बहुत डॉज्ड रहता है. ठीक है? एग्जाम प्रेशर होता है,
और पीयर प्रेशर्स होता है, पेपर कैसा होगा वो होता है, मे बी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा, उसका प्रेशर होता है। तो व्हाट हैपन समटाइम्स यू टेंड टू स्किप समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। तो जब भी मैं अगर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करती थी नीट का, तो मैं कैसे करती थी मैं आपको बताती हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, किस चीज के रिगार्डिंग है उसको अंडरलाइन करके या ऐसे बॉक्स बना लिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इन 18th सेंचुरी एंड द अर्ली फेज ऑफ ब्रिटिश रूल। तो आपने अपने की पॉइंटर्स को अंडरलाइन कर लिया या ब्रैकेट बना लिया। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इनकरेक्ट और करेक्ट, इसमें दिक्कत होती है, इसमें बच्चे डॉज कर जाते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इस चीज में हमेशा वो कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसको या तो उसको ब्रैकेट बना लीजिएगा कि आपको वो हाईलाइटेड पोर्शन पता रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Read the first statement, everyone. The decline of the textile industry in the late 18th century was primarily due to the British policy of free trade, which allowed Indian textile to enter the British market on equal terms. Is this correct? Did British allow free trade? No, they didn't allow. अब देखो, हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया। अब उसमें से क्या कर सकते हैं आप, अपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों पूरा पेपर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करना है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, एक पहला हमें इनकरेक्ट मिल गया बाय गॉड ग्रेस, तो हमने स्टेटमेंट्स को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, जिसमें वन है वो तो ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि हमें करेक्ट चाहिए। हमें ऑप्शन मिल गया बी, हमारा टाइम सेव हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार दूसरे ऑप्शंस पे नजर मार लेंगे। द ब्रिटिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स फ्रॉम द लेट 18th century which made Indian product uncompetitive in international markets, which is correct. The shift in demand from enhancement of machine-made textile in the British played a crucial role in decline of Indian textile industry, which is correct. ऐसे हमने अपना समय बचा लिया। So B is the right answer for the first question. Very good. A lot of people have said B. ऐसे अपना टाइम बचाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, लेट्स सी। क्वेश्चन 2, with reference to European penetration। अब फिर हम क्या करेंगे, अगेन द सेम थिंग, किसके रेफरेंस से, यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which statements are or is correct। Start reading. The Battle of Plassey was fought primarily due to the trade rivalry between the British East Company and French East Company. Was it true? This is wrong। पहला रॉन्ग है, फिर एलिमिनेट कर लिया, हमें आंसर मिल गया। अंडरस्टूड, लेकिन फिर भी हम एक बार वो पढ़ लेंगे। The subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley was military fiscal system that aimed at rendering the Indian states dependent on the British protection, which was correct. The Governor General in the Council under the Regulation Act of 1773 had legislative power over the British settlements in India. Correct, correct, tick tick, done। वेरी गुड, बी इज द आंसर। बहुत अच्छे। समझ में आ गया।
कैसे करना है? क्वेश्चन 2 डन, क्वेश्चन 3। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। जल्दी से आंसर बताइए मुझे उसमें। बी है? बी इज द करेक्ट आंसर। With reference to India in 18th century and the British conquest of India, consider the following statement. पहला करेक्ट है। दूसरा, आई एम लुकिंग एट द चैट्स। दूसरा करेक्ट है। तीसरा भी करेक्ट है। फोर्थ इज रॉन्ग। सो विच इज द आंसर? बी। यस। वेरी गुड रिया, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है मैम, आंसर राइटिंग नहीं है ये तो। बेटा हर चीज करवा रही है ना आंसर राइटिंग भी, थोड़ा पेशेंस रखो। एमसीक्यूज छोड़ दो। चलो, किसको आंसर राइटिंग करनी थी? बहुत जल्दी हो रही थी किसी को तो। स्टार्ट। अब इसमें क्वेश्चन में अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है मैं ये आपको बता देती हूँ। ठीक है, लेट मी टेक दिस। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ, इसमें भी यही करना। पहले अंडरलाइन कर लेना कि क्या पूछा है। इंडियन handicraft in 18th century on the Indian economy and the society. In your answer, also access the role of British policies in shaping the decline. तो हमें दो चीज पे काम करना है। पहला, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे। दूसरा, ब्रिटिश का रोल पे उनकी डिक्लाइन पर। ठीक है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का थोड़ा सा अपने उसमें इंट्रोडक्शन दोगे। जैसे कि कभी भी आप एक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो तो चैप्टर का जस्ट तो शुरू नहीं हो जाता तुरंत, पहले उस चैप्टर के आसपास का इंट्रो होता है। वैसे ही हम अपनी आंसर राइटिंग में भी करेंगे। ठीक है, कि ब्रिटिश से आने के पहले इंडियन हैंडीक्राफ्ट कैसा था। सो वी कैन स्टार्ट राइटिंग कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट was of the finest handicraft before the British policies. ओके, फिर हुआ क्या? कॉलोनियल पॉलिसीज जो आई जिसकी वजह से वो डिक्लाइन, जिसकी वजह से उसमें डिक्लाइन होने लगा। ओके, इसके बाद बॉडी में आप अपने पॉइंटर्स बनाएंगे लिखने से पहले कि इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, फिर उसके सब पॉइंटर्स। ठीक है, फिर दूसरा, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, उसके पॉइंटर्स। फिर ये दो चीज हो गई, सोसाइटी इम्पैक्ट का, इसके पॉइंटर्स लिखेंगे आप। ठीक है, कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। लिखना, लिखो इसको। हुआ क्या क्या? पहले तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, सॉरी। दूसरा क्या हुआ था? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स होने लग गया था। ठीक है, और क्या क्या हुआ था जल्दी बताइए।
इंक्रीज, वेरी गुड, इंक्रीज इन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, लोग एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा जाने लग गए थे, और वेल्थ जो है वो ब्रिटेन की तरफ ड्रेन होने लग गई थी। ये हमारा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट था। इसके बाद फिर क्या हुआ, सोसाइटल इम्पैक्ट में क्या हुआ? ठीक है, आर्टिस्ट जो है वो विलेज की तरफ माइग्रेट करने लगे, क्यों? क्योंकि उनका इंक्लिनेशन एग्रीकल्चर की तरफ हो गया था। रूरल पॉवर्टीज बढ़ने लग गई, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल, लोगों ने उनसे अपने ट्रेडिशनल आर्ट्स को सीखा ही नहीं, तो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स, वेरी गुड। Yes, the urge to not work with the handicraft started coming to, like, started declining because there was no massive profit. उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहा था, इसकी वजह से। इसके बाद हमने ब्रिटिश पॉलिसीज लिख लिया। अब ये तो पॉइंटर्स हैं, इसको आपको इलैबोरेट करके लिखना है, जैसे मैंने क्लास में आपको पॉइंटर्स के साथ इलैबोरेट करके बताया था, उसको आपको फिर इलैबोरेट करके लिखना है। ठीक है, अब रोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, heavy duties on Indian textile, free entry of British machine made goods, very good, monopoly होने लग गई, very good। और सब मैं ही बताऊं क्या? जल्दी जल्दी अपने आंसर्स भी बताओ। वेरी गुड, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, वेरी गुड। लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज होने लगी। ठीक है, फिर इतना हमने, पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने जो हमसे मेजर टॉपिक्स पूछे गए हैं उनके सब टॉपिक्स को लिख के उसे एक्सप्लेन कर दिया। फिर जो उसका लास्ट, जो दूसरे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के बाद उसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, एक कोई अच्छा सा कंक्लूजन लिख के मुझे भेजो जिससे मैं रीड कर सकूं। वेरी क्विकली, टेक 2 minutes एंड राइट डाउन द कंक्लूजन। Okay, Rishabh has written something good. Let me read out. The decline of handicraft transformed India from an exporter of finished goods into a suppliers of raw materials, creating long-term economic underdevelopment. Very good. This was good. है ना? समझ में आया कैसे करना है? दूसरे क्वेश्चन पे चलें। Evaluate the expansion of British power in India during the second half of the 18th century. How did it affect the political structure and economic condition of the Indian states? फटाक से इसका मुझे पहले इंट्रोडक्शन लिख के दिखाओ कोई। आशुतोष हैज रिटन अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। तुम लोग क्या मतलब पहले से शीट पहुंच गई थी, तो जल्दी टाइप कैसे कर ले रहे हो भाई? कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हो? पिटाई लग जानी है बेटे। बिटवीन, या आशुतोष विल यू प्लीज राइट डाउन अगेन? आपका चैट स्क्रॉल हो गया ऊपर। Between 1757 and 1800, the British East India Company transformed from a trading company into a political power. Very good. How did it transform to a political power, and what made them lead to the political power? अब अपना वो याद कर लो, जो पीडीएफ, जो स्लाइड हमने पढ़ी थी। ठीक है, डिफीट ऑफ इंडियन रूलर्स, अलायंस फॉर्म हो गए थे, उन्होंने टेरिटरी एक्सपैंड कर ली थी अपनी, और स्ट्रॉन्ग, उनके पास इन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, स्ट्रॉन्ग मिलिट्रिकल पावर्स थे। ठीक है, ये तो उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। अब इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी क्या थी? हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, उन्होंने हमारा वेल्थ ड्रेन कर लिया था, उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ऑलमोस्ट नल पे ले आए थे, और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वेरी गुड। अब फटाक से इसका भी कंक्लूजन लिख के दिखा दो मुझे कोई। कंक्लूजन, कंक्लूजन। Who is this? Ria. Fine. Ria, why did you join the class late today? हैं?
British expansion permanently altered India's political structure and laid the foundation of colonial rule. जब इस क्लास का वो होगा रिकॉर्डिंग पड़ेगी तो प्लीज रिया आप एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा आपने. डो नॉट स्किप द एमसीक्यू क्वेश्चन. आई हैव टोल्ड हाउ टू डू द एमसीक्यू क्वेश्चन. Okay, and please try to be in the class at time on sorry on time. ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है. Examine the significance of the permanent settlement of 1793 in the context of British policy of land revenue. How did it affect? इसको आपको 250 वर्ड्स में लिखना है. मैं 12 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ. Take 10 to 20 minutes. Sorry, 10 to 20 minutes कह रही हूँ. Take 5 to 10 minutes. Get ready. मैं टाइमर लगाऊंगी तो फिर मैं नहीं रुकूंगी. ठीक है. आप दो आप यू कैन गो एंड टेक योर कॉपी. ब्रिंग योर कॉपीज इन एवरीथिंग. फिर मैं टाइमर लगा. आई एम गिविंग यू 5 minutes. डन. शुरू करें फिर. लगाऊं मैं 12 मिनट का टाइमर.
I hope you can see. I'm starting the timer here. Okay. And you will be starting your question. My question ला रही हूँ and then I'll be starting the timer. 1, 2, 3, start. Eight-minute left.
3 minutes left. Two minutes left. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Pens down, please. Okay. I think all must have written this practice question. Please scan your practice sheets and please send us so that we can check. Okay? Thank you, everyone. I'm wrapping up today's session. I'll see you with the third chapter in the next class. Okay. You enjoyed? Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye, everyone.